آج ہمارا موضوع ہے نیا خون، یعنی دنیا کے اندر آپ کو بڑے خون ملیں گے پر نیا خون کوئی نہیں ملے گا۔ نئے خون کی اپنی خاص اہمیت ہے، اس کا اپنا زور ہے، اس کا اپنا تقدس ہے۔ ہم نکالیں یسایہ کی کتاب اور اس کا 44واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ کتنا صاف میسج ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو جو گھٹا کی مانند ہیں، تاریکی کی مانند ہیں، گناہ جو ہے وہ تاریکی ہے، تیری خطاؤں کو جو گھٹا کی مانند ہیں اور تیرے گناہوں کو جو بادل کی مانند ہیں مٹا ڈالا۔ یہ بادل ساری دنیا کے اندر آتے ہیں، گھٹائیں ساری دنیا کے اندر آتی ہیں۔ خداوند ہر نسل انسانی کے ساتھ کلام کرتا ہے ان بادلوں کے وسیلہ سے، ان گھٹاؤں کے وسیلہ سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان گھٹاؤں اور ان بادلوں کے ساتھ منسوب کریں۔ تو یسایہ کی معرفت اس نے کہا کہ ایک بڑی دعوت کے ساتھ اس نے یہ میسج دیا ہے کہ میں نے ایک فدیہ دیا ہے۔ کس چیز کا؟ گناہ کے معاف ہونے کا۔ جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس کا ایک مقصد ہے کہ کیوں قربانی دیتے ہیں۔ قربانی بعض لوگ فیشن کے ساتھ دیتے ہیں، بعض لوگ قربانی کے اصلی مقصد کو نہیں سمجھتے، اور قربانی سے ہم خدا کو خوش کرتے ہیں۔ قربانی کا جو مفہوم ہے وہ پرستش ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی قربانی کریں ہم پرستش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر پرستش کا قربانی حصہ ہے۔ اور جب کبھی ہم خادموں سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو کسی سیمینار کے اندر یا کوئی ایسی ٹیچنگ دیتے ہیں تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بلاوا جو ہے، our calling، جو ہماری کالنگ ہے، requires sacrifice، وہ قربانی کو طلب کرتا ہے۔ بلاوا قربانی کو طلب کرتا ہے۔ تو اب یہ آپ سمجھیں کہ میں شاید خادمہ نہیں ہوں، میں خادم نہیں ہوں، تو یہ شاید میرے لیے نہیں ہے۔ نہیں، وہ سب کو بلاتا ہے، چاہے گنہگار ہے چاہے ایماندار ہے، وہ سب کو بلاوا دیتا ہے۔ اور بلاوا وہ کیا ہے جو کامن ہے سب کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جو گنہگار ہے اس کو بلاہٹ دی گئی ہے کہ وہ بچ جائے، موت سے بچ جائے، اور جو ایماندار ہے اس کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ نجات پائے۔ جو خادم ہے وہ بھی نجات کے ساتھ ملبس ہوں۔ ایک خادم کی، مسیح کی خوبصورتی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ اس کا لباس اوپر سے آتا ہے اور اس کا نام نجات کا لباس ہے۔ نجات کا لباس کاہنوں کو، مسیحیوں کو، ہمیں نجات کے لباس میں ملبس ہونا ہے۔ ملبس کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت، دلکش۔ اگر ایک انسان نے نجات پائی ہے تو خدا کی بڑی خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور جہاں پر روح القدس کی حکمرانی ہو، خدا کی حضوری ہو، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر لوگوں کو نجات ملتی ہے، اس کی حضوری کے سبب سے شفا ملتی ہے،
उसकी हजूरी के सबब से मौजज़ात आते हैं। इसलिए खुदा की हजूरी से दूर रहकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद ने यह कितना बड़ा मुकाशवा लिया, उसने कहा कि मैं तेरी रूह से दूर रहकर कहां जाऊं, मैं बच नहीं सकता। तो हमें खुदा का रूह जब कहते हैं कि खुदा का रूह, तो हम खुदा की हुजूरी की बात कर रहे होते हैं। खुदा का रूह खुदा की हुजूरी की मुशाबत है, उसके जलाल की मुशाबत है। हमें ये चाहिए, हर वक्त चाहिए, हर रोज चाहिए। तो यहां एक बड़ी दावत जो है वो यशायाह की मार्फत उसने बनी इसराइल कौम को दी है। बनी इसराइल कौम जो है वो खुदा का घराना है। खुदा जो है वो घरानों का खुदा है, और जिसको वो अपना घराना कहता है। इफ्सियों के खत के अंदर भी कहा गया अब तुम अजनबी नहीं है। वो 40 साल तक वो अजनबी रहे, वो मुसाफिर रहे, और वहां लिखा है कि अब तुम अजनबी नहीं, वहां अब तुम मुसाफिर नहीं, बल्कि खुदा के मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। अब जिनको खुदा अपना घराना कहता है उसी को कलीसिया कहता है। लिखा है पस पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, आसमानी बुलावे में, हमारा बुलावा आसमानी है। हम सबको आसमान पर जाने की तैयारी दे रहे हैं कि हम जाने वाले हैं। इस जगह को भी उसने तब्दील करना है। खुदा ने इस जमीन के लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 2 को मार देगा, 1 को रखेगा जिसको आसमान पर ले जाएगा, बाकी 2 मरने वाले हैं। इसी तरह आसमान पर 3 हिस्से उसने किए हुए हैं। 1 हिस्सा गिरा दिया गया, 2 हिस्से ऊपर रह गए। तो जो 1 हिस्सा गिरा दिया गया उसकी जगह किसने फिल करनी है? उसकी जगह आपने और मैंने फिल करनी है, जो यीशु के खून के वसीला से धुल गए, पाक किए गए, रास्तबाज बनाए गए और उसकी परस्तिश करने वाले हैं। हम ऊपर चले जाएंगे। फिर जमीन पर एक ही बादशाह होगा, एक ही उनका सियासी लीडर होगा, एक ही उनका मजहबी लीडर होगा। इसको कहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो अभी से कायम हो चुकी हुई है। कुछ चीजें अभी से हम देख रहे हैं उनको। इसलिए मेरे चीजों, आप इस बात में हाई अलर्ट रहें, हाई अलर्ट, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने खानदान के बारे में। तो मेरे चीजों, कोई नेकियां कर ले, कोई कुछ भी कर ले, कोई चीज दुनिया की जो है वो यीशु के खून के जगह नहीं ले सकती। और हम खुदा का शुक्र करें इस बात के लिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मेरे गुनाह को मिटा सकती है, जो मुझे हल्ले मुश्किलात दे सकती है कुव्वत, वो उसके खून में है। उसका खून नया खून है। ये नया खून कहां से आया है? ये मसीह के बदन से आया है। ये किसी गुनहगार से नहीं आया, ये किसी गुनहगार का खून नहीं है। कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोग डेली बेसिस पर खून जो है कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये खून देने वाले कौन है? उनके दिल के अंदर एक नेकी जरूर है। बाज लोग अपना खून दे रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए, पर बाज लोग जो हैं वो किसी प्यार में आकर, किसी हमदर्दी में आकर दे रहे हैं कि किसी की जान बच जाए। हर तरह का खून जो है वो एक जैसा नहीं है, पर मसीह का खून जो है वो नया खून है। मेरे चीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह बुलाए गए हैं। यीशु ने टैक्स कलेक्टर को वो कहा मेरे पीछे आओ। तो मेरे पीछे आने से क्या मुराद है? मेरी मानद बनो। अगर आप यीशु मसीह के पीछे आने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है आप यीशु की मानद बनने की कोशिश में हो। खुदावंद आपको अपनी मानद बनाने की कोशिश में है, यीशु की मानद। और कलाम कहता है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा
मसीह यीशु घर के अंदर आपका मिजाज कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु जैसा। आप शौहर हो, बीवी हो, कुछ हो, अपना मिजाज दिखाओ। बच्चों को भी एक मिजाज नजर आना चाहिए, उनको अच्छा मिजाज दो। कुछ बातें उनके सामने करने की हैं, कुछ नहीं करने की। अच्छे पेरेंट्स बनो। ये नहीं कि आप मालिक हो घर के तो आप जब मर्जी कोई कह दो, नहीं। खुदा का पाखरू आपको वॉच कर रहा है, आपकी किताब खुली हुई है वहां घर में भी। एक फरिश्ता है जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन वो लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है। जब वक्त आएगा तो ये किताब आपके सामने वो खोल देगा। आपको याद है कि जब तेरी बीवी किचन के अंदर थी और तू गुसल खाने में था, तो वहां से तू गाली दे रहा था, तू वहीं से लड़ रहा था। तेरी आवाज जो है रिकॉर्ड कर ली गई है। बीवी जो है वो क्या कहती है, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं और कहते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और हो रहा है इस वक्त जो बातें हो रही हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। हर ईमानदार का एक फरिश्ता है, मेरा एक फरिश्ता है जो मुझे वॉच कर रहा है, जो मेरी मदद भी करता है। इस तरह रूहानी बातों को रूहानी तरीके से समझें। वक्त थोड़ा बाकी रह गया है। अपने घरों के अंदर अपनी मखसूसियत को कायम करें। इब्राहिम को उसने यही कहा था, इब्राहिम मैं तेरा खुदा कादिर हूं, मेरी हजूरी में चल और बाइसे बरकत हो। ये तीन चीजें खूबसूरती से लिख लो और इनको याद किया करो। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। क्या कहा खुदा ने उसको ये कहा, मैं तेरा खुदाए कादिर हूं, तेरी हर जरूरत से बढ़कर हूं। कोई भी तेरी जरूरत होगी मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तेरा अजर हूं, गारंटी देता है। मैं तेरा खुदाए कादिर हूं। जब खुदाए कादिर कहकर कहता है, जब एक डॉक्टर आपकी बीमारी है तो वो कहता है मैं तेरा तबीब आज़म हूं, मैं तेरा डॉक्टर हूं, फिर मानो इस बात को कि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ डायग्नोज करता है। मेरे चीजों, अगर डॉक्टर किसी चीज को डायग्नोज ना करे, पर ये खुशखबरी जो है ये जहां भी सुनाई जाएगी, जहां कबूल की जाएगी, ये डायग्नोज कर लेगी आपकी हर बीमारी को। वो अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा देता है। उसका एक ही लफ्ज आपके लिए पावरफुल है। तो अपने लोगों को बचाने के लिए उसने कहा एक बर्रा लो और उसका क्या करो, उसको ज़बह करो। अपने घर की चौखट पर, अपने दरवाजे पर उसको ज़बह करो और उसका खून जो है वो लगाओ। खून के अंदर चले जाओ और मौत का फरिश्ता गुजरेगा और वो खून को देखकर वो गुजर जाएगा। इसलिए मेरे चीजों, उस वक्त वो खून लगाया गया था, लेकिन अब उस बर्रे का खून नहीं है, जानवर का खून नहीं है। अब ये कौन सा खून है? अब ये यीशु मसीह का खून है, जो हमारे ऊपर जहां कहीं भी अगर खुदा आपके दिल के ऊपर इस खून को देख लेगा तो वो गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो इस फसा को इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर। इसका तर्जमा करोगे गुजर जाना, गुजर जाना। अगर गुजर जाना ना समझ में आए तो क्या क्या है ये? उसने कहा गुजर जाएगा। कौन गुजर जाएगा? एक मौत का फरिश्ता है, वो गुजर जाएगा, बाकियों को हलाक कर देगा। जहां खून नहीं होगा उनको हलाक कर दिया जाएगा, वो गुजर जाएगा। इस गुजर जाने वाले का मुकाशवा क्यों दबाते हैं? इसको जानो कि फंसा क्या है, फंसा क्या है। हम गुड फ्राइडे कहने से फंसे को हासिल नहीं कर सकते। फंसा फंसा है, वो गुड फ्राइडे नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो इससे पहले शायद आपका जाहिर नहीं हुई। एक वक्त गुजर गया, मेरी जिंदगी के अंदर भी नहीं था, लेकिन जब खुदा के पाकरू ने जाहिर करना चाहा तो उसने जाहिर किया। इसलिए अब से हम इस बात को लें कि हमारा फसा खुदा का बर्रा
यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। उस वक्त उसने खून को देखकर, उनकी चौखट पर, दीवार, उनके दरवाजे पर खून देखकर वो गुजर गया। लेकिन अब वो कैसे गुजर जाएगा, मौत कैसे गुजर जाएगी? हमारे दिल के ऊपर उसका खून है, हमारी जिंदगी पर उसका खून है। हम जब कभी उसकी तारीफ करते हैं खून की, और खुदावंद यीशु के बेटे का खून मैं अपने ऊपर लेता हूं, अपना खून लिए फिरते हैं, और इब्लीस थरथराता और कांपता है उस खून के आगे, वो भागता है। इसलिए कि खून का, ये नया खून है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे चीजों, इस फसा को आप, जो पास ओवर है, जो गुजर जाने वाला है, हम इसका वो अपनी जिंदगी के अंदर लें। खरूज की किताब 12वां बाब और 13वीं आयत, जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। मेरे शिशो, ये खून एक नया खून है जो हमारी जिंदगी के लिए हमें दिया गया है। ये हमें रास्तबाज ठहराता है, ये हमें पाक करता है, ये हमें खुदा के पास आने में दलेरी देता है, ये हमें खुदावन के लिए उसके लायक बनाता है। वो जब आएगा तो हम बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। यीशु का खून आपकी जिंदगी में आ जाएगा, हर तरह की तारीकियां, घटाएं, खताएं, वो सब मिटा देगा। मैं बादल को, आपने देखा कभी कि कितने भी बादल होंगे, आप कहते हैं बादल ही बादल है, लगता है सारी तरफ एक जैसा बादल है, एक जैसा बादल है। फिर आप कहते हो कि एकदम सूरज जो इन बादलों के ऊपर है, उसकी किरणें जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, और वो किरणें क्या करती हैं? वो किरणें जो हैं वो बादलों को फाड़ती हैं, वो बादलों को मटा देती हैं, और बादल जो है जो मिटते जाते हैं, तो फिर आप कहते हो नहीं, बादल अब फटने लगा है। आप क्या कहते हो? बादल अब फटने लगा है। और आहिस्ता आहिस्ता सूरज जैसे जैसे बाहर निकलता जाता है, वो बादल जो है वो भागते जाते हैं जैसे उनको कोई खा गया है, और हत्ता कि ऐसा आता है कि आपको कोई बादल नजर नहीं आता, क्योंकि सारा बादल मिटा दिया गया है। किसने मिटाया है? सूरज की रोशनी में। यीशु मसीह को आफताब सदाकत कहा गया है। जब वो हमारी जिंदगी में आता है और उसकी किरणें आती हैं, तो वो गुनाह को बादल की तरह मिटा देता है, घटनाओं को बादल की तरह मिटा देता है। मेरे पास आ जा, क्योंकि तेरा फिदिया दिया गया है। मेरे पास आ जा। कितनी बड़ी मुलायम और हमदर्दाना ये दावत है। इस वक्त आपको दावत है, इसके बाद ये दावत खत्म हो जाएगी। उन 10 कुआरियों में से 5 ने बड़ी कोशिश की, खोलो खोलो, हम आ गई हैं, कौन हो तुम? भाई हम आपके साथ ही थी, खुदावंद मैं इनके साथ थी। उसने क्या कहा? अब दरवाजा बंद है। मेरे चीजों, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए, आपका खानदान, खुदावंद का खानदान जो कहलाता है, वो मसीह का बदन है, उस पर खुदा का जलाल है। आपके घरों से आवाजें निकलनी चाहिए खुदा के जलाल की, ठीक है? गानों को, बाकी चीजों को मटाओ, कम करो, इनको खत्म करने की कोशिश करो। अब आखिरी वक्त में है, आप आखिरी वक्त में लोगों को खुशखबरी सुनाओ, मसीह का नाम सुनाओ, मसीह का जलाल दिखाओ, अपनी रोशनी को दिखाओ लोगों को। तो ये आखिरी वक्त है, हम इस आखिरी वक्त में खुदावंद के पास आ जाएं। मेरे पास आ जा, क्योंकि तेरा फिदिया दिया गया है। चाहे कितने भी बादल होंगे, पर आपका बादल जो है वो फट चुका हुआ है। गुनाह का बादल मटा दिया गया है। घटा जितनी थी उसको उसने मटा दिया है। तो आए आज इस खून को, जो नया खून है, ये बहुत कुव्वत है। जहां पर यीशु का खून आता है वहां रूह कुदस जुम्बिश करता है। अगर अभी आप कहोगे क्या ये रूह पाक
میں یسوع کے خون کے ساتھ تیری حضوری میں ہوں، ایک دم روح القدس آپ کو جنبش میں لے لے گا. جہاں یسوع کا خون ہوگا وہاں پر روح القدس جنبش کرتا ہے.